Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan Sir. Myself Dr. Rajan Kumar Srivastav. Once again I am here before you. All of you have given me so much appreciation and this channel receives enormous appreciation. More than 1500 views, 161 subscribers and several actually have liked my video. Thanks for that. In last videos you have seen I had given several topics and I had taught you life and works of William Shakespeare part 1. So we shall study here next. So let's see here what is the topic of the day. Dear students, good morning to all of you here. Today we shall study here the lesson The Ailing Planet, the Green Movement's Role. It is written by Naini Palkhiwala. This is your from Hornbill book. It's your 5th lesson. So we shall study here. I will give you introduction to the lesson and summary. I will explain it also. Naini Palkhiwala, actually he was a great writer and thinker. He was attracted to nature and he was a special person for thinking about nature. Naini Palkhiwala's article on the declining health of the earth was written in 1994. The issues that he raised in the context are not improving but worsening. The situation is alarming. The thinkers are now creating breathing awareness to save the earth from going to dogs. Man himself can make or mar his destiny. He can save human race or destroy all forms of life. The present indications are not encouraging any hope or improvements. Day by day, the increasing pollution of environment is creating problems, space problem and survival problems. Man is rightly said to be the world's most dangerous animal. He stalks freely and in large herds like savages in the past. His war weapons are a million times deadlier than swords and spears. The poisonous chemicals and gases, the carbon dioxide and the industrial wastes are the real enemies of our race. The forests are disappearing, the deserts are expanding, the earth is becoming inhabitable. Our planet is in trouble, chiefly because of population boom. The writer draws our attention to all these burning issues of the day in this thought-provoking article. So it was the introduction to the lesson. Now I will give you summary of the lesson in Hindi and English. I will explain it. कहने का मतलब ये है नैनी पालखी राइटर का कि हमारी जो अर्थ की कंडीशन है, पृथ्वी की जो दशा है वो ठीक नहीं है या डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। और इसका कारण यही है कि हमारी जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, अवगुण हैं और हमारे कुकर्म हैं, ये सब इसके कारण बन रहे हैं। अर्थ हमारी अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रही है, जूझ रही है। और ह्यूमन ने क्या किया है कि नेचर के सभी रिसोर्सेज को अपना धरोहर समझ लिया है, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति मान लिए हैं। यह नेचुरल संसाधनों का दोहन पागलों की भांति तथा बिना सोचे समझे कर रहा है। वह सब इसलिए कर रहा है कि सोचता है कि हम विकास कर पाएंगे, पर असली समस्या यह है कि मनुष्य का स्वार्थपन इसमें जुड़ा हुआ है। वह सोचता है कि पृथ्वी, समुद्र तथा इसके नीचे जो कुछ दबा पड़ा है उस सब पर बिल्कुल उसी का ही निरंकुश अधिकार है। जो भी लिमिटेड संसाधन हमारे रिसोर्सेज हैं, अधिक उपयोग करने के नाते उससे पैदा होने वाले कई ऐसे इल रिजल्ट, दुष्परिणाम हमारी पृथ्वी को, हमारे अर्थ को आज झेलने पड़ रहे हैं। अब पृथ्वी पर ये स्थिति हो गई है
समस्या वर्तमान में केवल हमारी ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी की भी होगी। पिछले 100 वर्षों में हमने पृथ्वी को सर्वाधिक क्षति नुकसान पहुंचाई है। हमने वायु तथा जल को भी प्रदूषित कर दिया है। हमने अपनी मूलभूत ज़रूरतों के सभी वस्तुओं का अभाव पैदा कर दिया है। 1972 में पहली बार लोगों ने जब ह्यूमन काइंड के अस्तित्व के खतरे को पहचाना था और न्यूजीलैंड में हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग हुई थी, तो भय ने संपूर्ण मानव जाति के मन में एक उद्वेलन पैदा किया। हमारा ओपिनियन जो था निश्चित रूप से एक चेंजेस में आया। हमने संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक इकाई मानकर सोचने का कार्य शुरू किया। सेवरल ऐसे राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से नहीं, यह परिवर्तन क्रांतिकारी था। मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने विश्व को एक जैव तथा जीवंत रूप में समझा। एक शरीर के रूप में उसकी हर ज़रूरत तथा उसके हर पार्ट्स को आदर करना सीखना होगा। उनको संरक्षित करके समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार हमारी जनरेशन तो हमारी ही है, पृथ्वी की निरंकुश स्वामी तो हम नहीं हो सकते। हमारा नैतिक दायित्व यही है कि हम पृथ्वी को बीमार तथा सभी संसाधनों से रहित न छोड़े जाएं। आप जानते हैं कि जाम्बिया में लुआस्का एक जगह है, लुआस्का में, जहाँ एक चिड़ियाघर है। उस चिड़ियाघर के एक नोटिस बोर्ड लगा है, जहाँ पर लोग जब आते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि संसार का सर्वाधिक खतरनाक जानवर। वो एक्चुअली वहाँ पर एक शीशा मिरर लगा हुआ है। जो व्यक्ति उस मिरर को देखता है और ऊपर बोर्ड पर लिखा है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। और सबसे खतरनाक जानवर कौन है? नीचे शीशा लगा है। जो उसमें देखता है खुद अपने को देखता है और समझ जाता है कि सबसे खतरनाक जानवर, मोस्ट डेंजरस एनिमल तो केवल मानव ही हो सकता है। इससे बड़ा खतरनाक अभी तक कोई एनिमल नहीं पैदा हुआ। पिंजरे के अंदर कोई पशु नहीं है, केवल एक दर्पण यानी कि मिरर लगा है। इसमें आपको अपना ही प्रतिबिंब नजर आएगा। साफ शब्दों में मनुष्य ही इस ग्रह यानी कि इस प्लेनेट का, धरती का सबसे बड़ा शत्रु है। वही अपने इस घर को क्षति पहुंचाएगा। सच्चाई तो यह है कि हम इस पृथ्वी पर लाखों तथा जीवों के साथ मिलजुल कर सौभाग्यतापूर्वक रह रहे हैं। यह जीव छोटे और विशालकाय दोनों प्रकार के हैं। इसमें से अधिकांश तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं क्योंकि हम मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम इस धरती को अपने वंशजों के लिए ऐसी स्थिति में छोड़ जाएं जिससे यह मरुस्थल बढ़ता जा रहा है तथा पर्यावरण प्रदूषित होता जाएगा, जिससे इस पर कैसे रोकथाम हो। हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था के 4 स्तंभ या स्रोत हैं। मछली, जिसको आप फिशर कहते हैं, फिशिंग। दूसरा है वन यानी कि फॉरेस्ट। तीसरा है घास यानी कि ग्रासलैंड, जिसको घास के मैदान कह सकते हैं। तथा कृषि योग्य भूमि, जिसको आप फर्टाइल लैंड या फर्टाइल फील्ड कहते हैं। यह हमें भोजन सुलभ कराते हैं तथा हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देते हैं। इसके अलावा अर्थ के नीचे मिनरल्स हैं और कच्चा तेल भी है, दवा भी है, सब दबा हुआ है इसके नीचे। विश्व के अधिकांश भागों में इस स्रोतों का दोहन इस स्तर तक हो गया है कि अब वे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। मछलियां हमारी नदियों तथा समुद्रों से कम होती जा रही हैं। वन को काट काट कर गायब किए जा रहे हैं। चारागाह बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं तथा कृषि मृदासन हो रही है। अनेक प्रकार की प्रजातियां तेज गति से वनों के कटाव के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। वन काटे जाने का कारण है अधिक खुली जगह की ज़रूरत तथा ईंधन की लकड़ी की मांग। जो वन छोटे होते जा रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। लोग गोबर के उपले बनाकर उसे जलावन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण खेतों के प्राकृतिक खाद्य नहीं मिल पा रहा है। अब आज इस टाइम में, प्रेजेंट में, हर एक सेकंड में लगभग 1.5 एकड़ वन की कटाई करते जा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्य पर्यावरण, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, पर कानूनों का भारत में ना कभी आदर किया जाता है, ना ही उन्हें लागू किया जाता है। इनकी दशा वैसे ही है जैसे छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। जैसे छुआछूत निवारण की बात होती है, मधुआ मजदूर की बात होती है, जिसको बॉन्ड लेबर कहते हैं। जातिवाद की बात होती है, जिसको कास्टिसिज्म कहते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वेक्षण ने हमें वार्निंग दी है
कि 88 ईयर्स में देश में जहां जांच पड़ताल की गई वहां पर्यावरण की दशा बड़ी ही चिंताजनक है। मानव समाज के भविष्य को खतरे में डालने वाले कौन कौन से कारण हैं? सबसे ऊपर है जनसंख्या वृद्धि। हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या में 10 लाख लोग जुड़ जाते हैं। 1800 में कुल जनसंख्या थी 100 करोड़। 100 वर्ष पश्चात 1900 में यह दोगुनी होकर 200 करोड़ हो गई, पर 2000 के अंत तक यह बढ़कर लगभग 600 करोड़ हो गई। इस वृद्धि को रोकने का एकमात्र उपाय है सर्वांगीण विकास, शिक्षा, प्रसार तथा बेहतर आय। पर सारा विकास तो जनसंख्या वृद्धि ही चूस लेती है। धनी तो अधिक धनवान होते जा रहे हैं, गरीब लोग अधिक बच्चे पैदा करके दरिद्रता में डूबते जा रहे हैं। तो क्या पुरुषों की जबरन इमरजेंसी जो लगा था एक समय, आपको याद होगा, उसका भी जिक्र राइटर ने किया है। बेहतर तरीका है कि स्वेच्छा से इसको एक्सेप्ट किया जाए, एक फैमिली प्लानिंग को भी एक्सेप्ट किया जाए। पॉपुलेशन के रोकने के लिए जो भी एक अनुकूल परिस्थिति बन सके, सुलभ परिस्थिति बन सके, उसको एक्सेप्ट किया जाए। यही अस्तित्व की रक्षा हमारे लिए कर सकता है। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट, आवर नेचर। यह हमारे भविष्य का एकमात्र पासपोर्ट है। उद्योग भी हमारी वायु तथा जल एवं ज़मीन को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। किसी भी जनरेशन के नाम कोई धरती, कोई लैंड, अस्थाई पट्टा नहीं लिखा दिया गया है। हमें तो अपने जीवन काल की किराएदारी मिली है, यानी कि हम लोग यहाँ पर हैं तो एक रेंट, ये समझ लीजिए कि रेंट पर हैं हम लोग को किराएदार के रूप में हैं यहाँ पर। हमें अपने को बचाना है और इसको धरती को भी सुरक्षित रखना है। हमने पृथ्वी को, अपने अर्थ को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमें तो यह अपने बच्चों से उधार में मिली है। तो ये ध्यान के रखना जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी पर्यावरण की रक्षा, हमारे अर्थ प्लेनेट की रक्षा हो सकेगी। सो इस तरह से नेली पालखीवाला राइटर ने इस लेसन को बहुत ही बाखूबी और बहुत ही लोगों को अवेयर करने के लिए लिखा है। बहुत ही पॉपुलर ये लेसन है। एक ये आर्टिकल है, ये एलिंग द प्लेनेट, जिसको एलिंग का मतलब होता ही बीमार, जानते ही आप। एलिंग प्लेनेट का मतलब ग्रह, यहाँ ग्रह कौन सा है? धरती है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, यानी कि हरित क्रांति जिसको आंदोलन कहते हैं, उसकी भूमिका। तो इस लेसन में एक आंदोलन की बात की गई है कि किस तरह से इसमें चेंजिंग आवे। हम समझते हैं ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द लेसन आल्सो। So hello viewers, actually all of you have seen my video continuously and I hope that all of you will prepare your notes and if you like my video please subscribe my channel and like my video and press bell icon inside so that you may receive all my notification to all of you first. So thanks for watching my video. Thanks a lot.